हेलो, यस सर। स्टार्ट करूं सर? So, next topic is molar conductivity and degree of dissociation. Degree of dissociation. So, here what is the relation? Alpha is what degree of dissociation. So this is what experimental formula. So lambda, yesterday only we have done कि lambda is what molar conductivity, and if you observe carefully, okay, यहाँ पे देखो लिखा है it is what lambda c upon lambda 0, nothing but lambda c is what molar conductivity at given that present concentration, and molar conductivity lambda not 0 is what molar conductivity at 0 concentration. इसको हम लोग this we are going to use to solve numericals. Now next part of this chapter, okay, is measurement of conductivity. That means कोई भी solution का conductivity कैसे measure करते हैं. तो जो आपके सामने दिख रहा है, this is called conductivity cell. And let me tell you one thing, this particular conductivity cell has fixed cell constants. Fixed cell constant. Okay, तो ये जो है, these are what, tell me, platinum plates, and this is what solution of which we are going to find conductivity. Okay, and these two plates, platinum plates, are fixed in glass tube, और ये connections. Now before that, थोड़ा सा इसमें बच्चे जंबल हो जाते हैं. लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस. विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, ये पहले आपको मालूम होता है. ओके, सो व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? जो मैंने आपको बताया, इट इज व्हाट वन ग्लास ट्यूब, okay, with two platinum plates coated with finely divided platinum black, okay, using chloroplatinic acid, HClO4, H2PT, P2PT, Cl4. Now why this platinum black? Because, okay, to absorb, okay, for very good absorption, and the cell is dipped in the solution, cell is dipped in the solution whose resistance to be measured. देखो वापस मैं बताता हूँ, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, बट वो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, नाउ सेल कांस्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया, ईच सेल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी सेल हैज सेल कांस्टेंट. व्हाट इज दैट? लेंथ अपॉन एरिया, द रेशियो ऑफ सेपरेशन, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस between the two electrodes to area of cross section, it's called cell constant. लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो ये कट हो जाएगा. एंड व्हाट इज द आंसर? सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स. नाउ बेटा अभी आगे देखो, कंडक्टिविटी आपको मालूम है, इट इज व्हाट, conductivity is what 1 upon r into l upon a. बट आपको मैंने कल बताया था, if you are not getting this thing, what is 1 upon r? It is conductance. Okay, so आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो इट्स वेरी गुड. k is equal to 1 upon r l upon a. Now so if you observe carefully, देखो यहाँ पे मैंने what I got here, L upon A, but what is L upon A का value? Cell constant. So can I write down K is equal to 1 upon R, and here I'll put cell constant का value. In short, K is equal to what? Cell constant upon R, right? This ये पहले आपको मालूम होता है. After this, देखो, हाँ,
वी हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग। पहले मैं बता देता हूँ, ये सब पहले इंट्रोडक्शन है। सो पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया कंडक्टिविटी सेल, जिसका फाइंड आउट किया सेल कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला L अपॉन A, एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यू नो 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, बट व्हाट इज दिस L अपॉन A? सेल कांस्टेंट। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट K। नाउ आफ्टर दिस, ध्यान देना, हाँ, दिस पार्ट इज फ्रॉम फिजिक्स। अभी देखिए, शायद आपका ये पार्ट हुआ नहीं रहेगा अभी तक। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपका शायद हुआ नहीं रहेगा। नाउ हेडिंग देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी of unknown solution. It is determined by finding resistance, the way I told you. So first you find out cell constant. What is cell constant? L upon A. Find conductivity K, and then go for calculation of molar conductivity. Now what is the calculation of molar conductivity? देखो कल ही हम लोग देखा था, lambda is equal to 1000 K upon C. This is the formula. What is that? Lambda is equal to 1000 K upon C. This is the formula. So these are the only steps. Cell constant मिलेगा L upon A, conductivity मिलेगा K, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जस्ट सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? के फाइंड आउट करने का। ओके, तो आप बोलोगे सर के फाइंड आउट करने का, अभी इसके पहले तो आपने ये पेज पे दिया ना, यस के, व्हाट इज दैट? सेल कांस्टेंट, वो तो मिल गया। अभी ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दैट? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका? वो सॉल्यूशन का। अभी आगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, क्या करेंगे, एक इंटरवल के पहले का स्टोरी और इंटरवल के बाद का स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हाफ में व्हाट वी आर, बाद में मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ मैंने पहले क्या करने का है। फर्स्ट हाफ में, ओके, हियर एक मिनट, what is written here? Determination of conductivity of unknown solution, so we are not going to introduce here unknown solution. Here in first half we are going to introduce KCL solution of known conductivity, that means जिसका कंडक्टिविटी मालूम है वो KCL solution पहले हम लोग इधर डालेंगे। ओके, एंड why? So with the help of that, आपको कंडक्टिविटी मालूम है ना? KCL, I have added here KCL solution जिसका मेरे को कंडक्टिविटी मालूम है। So why I am putting KCL solution? To find out cell constant, तो अभी देखो, एक मिनट में वापस आपको एक बार पीछे लेके जाता हूँ। What is the formula? K is equal to cell constant upon R. But what I said, I have taken KCL solution of known conductivity. That means मेरे that means बच्चों मेरे को ये K मालूम है, मैं उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता करूंगा और R और K का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? सेल कांस्टेंट। दैट मींस वेरी फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट सेल कांस्टेंट, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस KCL solution of known conductivity. ये पहला अपना काम है। पहले क्या फाइंड आउट करने का? सेल कांस्टेंट। ओके, अभी आगे देखिए, ये विच सेल कांस्टेंट, ये बताता हूँ ये सब डायग्राम क्या है। सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग KCL solution of known conductivity by Wheatstone bridge principle. Okay, by finding resistance of solution. Okay, now what is this one? Variable resistance.
Okay, and this is what one wire. Okay, so that each conductor also has some resistance, and if you observe carefully, these two are platinum rods are connected over here. Solution, तो ये solution का भी resistance है. Now, if you observe carefully, this one and this one, ये दोनों में ये common point है. और आपको मालूम है, एक मिनट, कॉमन पॉइंट मींस लाइक दिस. तो इफ दिस इज व्हाट, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया. ओके, सो वो ये पैरेलल कनेक्शन का फंडा यहाँ पे यूज किया है. अभी आगे देखो बेटा, आर एक्स इज वेरिएबल, आर एक्स इज वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस. दैट मीन्स इसका वैल्यू मालूम है. placed in one arm, placed in one arm. Conductivity cell is placed in another arm. This one, तो ये common point है. Okay, containing what? KCl solution. Containing what? KCl solution. और ये D क्या है? जॉकी है. अब शायद आपने 11 में यूज किया रहेगा जॉकी वाला एक्सपेरिमेंट, जो नल डिफ्लेक्शन वगैरह, मीन्स व्हाट, पैरेलल है तो बैलेंस करोगे तो नल डिफ्लेक्शन आएगा, मीन्स व्हाट करंट फ्लो होगा ही नहीं. So it is what current detector. Okay, and this is what jockey. यहाँ पे आपको वो we can use galvanometer या कुछ भी, any instrument जो आवाज करेगा, कुछ भी. Okay, galvanometer यूज करोगे तभी भी चलेगा. AB, this is what uniform wire. अभी यहाँ पे भी मैंने ऐसा रेजिस्टेंस बनाया. क्यों? क्योंकि हर एक कंडक्टर को भी उसका खुद का एक रेजिस्टेंस लगता है. तो बेटा ध्यान देना, इधर ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू इट इज रिटन ना देयर, आर एक्स इज वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन वन आर्म. व्हाट इज नेक्स्ट वन? यहाँ पे ये जो है ये सॉल्यूशन को अटैच है, तो ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हो गया, मींस वी कैन से आर एस. और ये क्या है? वो वायर का रेजिस्टेंस. नाउ हम लोग कल ही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to what? Length or area. Resistance is directly proportional to length, है ना? तो बेटा ये मालूम होगा. अभी देखो कैसे फंडा यूज किया है. Listen here. So this AC is alternating current. AC is alternating current. Okay. Now बेटा ध्यान दो. Again I am telling, this is what variable, but it is what known resistance. This wire also has some resistance and this solution का resistance, इसको हम लोग को find out करना है. तो हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? Wheatstone bridge. कौन सा प्रिंसिपल? Wheatstone bridge. अभी देखो, after joining all this thing, sliding contact, that means this F, okay, is moved along AB until no current flows. Until no current flows. Suppose मैंने यहाँ से मूव किया और ये पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन बताया, मींस डिफ्लेक्शन बताया नहीं, मींस व्हाट? करंट क्या हो गया? बैलेंस हो गया. सो देयर इज नो फर्दर करंट फ्लोज. ओके, सो द डिटेक्टर डी शोज नो डिफ्लेक्शन. सो दिस वे वी गॉट नल पॉइंट, दैट इज व्हाट? एट सी. मैं वापस बताता हूँ. ये जो जॉकी है, this I am going to slide on this wire, metallic wire. Ankush. बेटा सब लोग म्यूट कर दो बेटा प्लीज. लिसन, सो
thing is what, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, this jockey I am going to slide on this wire. So at some point I am going to get null deflection. इसमें deflection आएगा ही नहीं. Means what? Current balance हो गया. That means there is no current flows. Okay. Now, so this is what length AC. ये मैं measure करूँगा. मेरे पास measure करने के लिए ये तो मालूम है मेरे को. So मैं ये length measure करूँगा. Length AC. But and what is this one? Length CB. So this length AC, Funda says कि resistance is directly proportional to length. That's why this length AC is nothing but resistance AC. And this is what length BC, or we can say CB, is resistance CB. Right? What is एक बदल यहाँ पे मैं जब ये जॉकी स्लाइड करूंगा ना ये वायर पे, तो मेरे को एक सर्टन पॉइंट पे क्या होगा, लिसन हियर, ये गैल्वेनोमीटर है ना, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? उसमें ये सर्किट में करंट क्या हो गया, अभी फ्लो नहीं हो रहा है. आप बोलोगे कैसे सर, बैटरी तो लगाया है तो करंट तो फ्लो होना ही चाहिए. यस, हो रहा है, बट ये बिकॉज ऑफ पैरेलल पोजीशन उसने बैलेंस कर लिया. अंडरस्टूड? सो एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर एट सी पॉइंट, आई एम गेटिंग नल डिफ्लेक्शन. बेटा अभी ध्यान दो, अभी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेजर दिस लेंथ एसी. सिंपल, मैं ये लेंथ एसी मेजर करूंगा, ये लेंथ बीसी मेजर करूंगा. So what is this length AC? But you know one thing, कल मैंने बताया था resistance is directly proportional to length. तो ये length AC is nothing but your is resistance CB. अभी इसको हम लोग लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. क्या है वो? ये कॉमन पॉइंट है. तो रेजिस्टेंस, ये किसका रेजिस्टेंस है बोलो? सॉल्यूशन का. तो we can write down one equation based on Wheatstone bridge principle. Okay, देखो, sliding contact is moved along AB. मैं मांगता तो वापस बताता हूँ. Until no current flows, the detector D shows no deflection. The null point is obtained. अभी देखो, what is Wheatstone bridge principle? Okay, देखो, ये क्या है? Resistance of solution है upon resistance of AC. But what is resistance of AC? Length AC is equal to resistance of RX upon length BC. This is what Wheatstone bridge principle. ये आपको मान के आगे चलना पड़ेगा. ओके, सो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया. देखो बेटे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू Wheatstone bridge principle, resistance of solution upon length AC is equal to RX, जो आपके पास known है, upon length BC. So you know length AC, you know length BC, and already RX का वैल्यू आपको मालूम है. So what we are going to get? Resistance of solution. Resistance of solution. Now after getting resistance of solution, देखो what I told, I am trying to find out resistance of solution. So after getting resistance of solution, and मेरे पास जो KCL solution मैंने यूज किया वहां पे, उसका मेरे को कंडक्टिविटी मालूम है. सो R and K का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? सेल कांस्टेंट. दैट मींस फर्स्ट स्टेप, अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज द स्टेप टू फाइंड आउट सेल कांस्टेंट. Now, what I'll do now? What is my aim? To find out conductivity of unknown solution. So I will remove that KCL solution. I'll clean thoroughly that cell conductivity cell with unknown solution, and I am going to fill that conductivity cell with unknown solution. वापस मैं क्या करूंगा? Listen.
determination of conductivity of unknown solution. Now KCl is replaced by unknown solution, and again by this method, by sliding that jockey and all these things, वापस मैं वह सब करूँगा, and its resistance is measured by same method. Okay, so what I got now? अभी बेटा ध्यान दो, अभी मेरे पास क्या है? I am using that same conductivity cell, and if I am going to use same conductivity cell, उसका cell constant same रहेगा. And what I got? Resistance of that unknown solution. So if I am going to divide cell constant by resistance of that unknown solution, what I am going to get? K. This K is of unknown solution. Now what is next part? Molar conductivity. And already मैंने बताया, what is the formula? Lambda is equal to 1000 K upon C. So with the help of that, I can find out molar conductivity. एक बार मैं वापस बताता हूँ. Listen. First step is what? To find out cell constant of conductivity cell. अच्छे से सुनो. To find out, step 1 is to find out, देखो ना यहाँ पे लिखा है cell constant, determination of cell constant. How? For that, I am going to use KCl solution of known conductivity, and then I am going to find out null deflection on this wire. So this length AC, Wheatstone bridge principle क्या कहता है? R अगर वो पैरेलल है तो R अपॉन मींस ये साइड वाला रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट AC is equal to resistance of Rx and resistance of DC. ये Wheatstone bridge principle अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. So by using KCl solution, I am going to get resistance of KCl solution. After getting this thing, again I am telling, I am finding resistance of KCl solution to find out cell constant. Which formula? Conductivity into resistance. So I got cell constant. So I am using same cell. So same cell है तो cell constant भी same रहेगा. करके अभी मैं क्या करूँगा? I am going to replace KCl and I am going to introduce that unknown solution of which conductivity is to be found. So अगेन मैं ये सेम प्रोसीजर करूंगा, वापस मैं जाऊंगा, वापस मैं वो नल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, वापस मेरे को लेंथ AC मिलेगा, वापस मेरे को लेंथ BC मिलेगा, एंड अगेन आई एम गोइंग टू गेट रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन. After getting resistance of unknown solution, already I have cell constant which I got from step 1. So by using this formula, I can find out K, nothing but conductivity of unknown solution. And after getting K, I have got formula for molar conductivity, 1000 K upon C. So with the help of that, I can find out molar conductivity. Okay. Now, listen here. So let me tell you one thing. This is what यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. Now what is left? The thing is what? Numericals इसका बाकी है. Okay, बेटा. But before that, listen. आपको already we have discussed this thing. We have got 4 cell, dry cell, lead accumulator, okay, nickel cadmium battery, mercury cell, lead accumulator and fuel cell. Okay, बेटा ध्यान देना. To know each and everything about cell, you should know 4 things: anode, cathode, electrolyte and cell reaction. So first of all, let me tell you involvement of moles of electron. Listen here. Everywhere
we are going to use 2 moles of electron. Only in fuel cell we are going to use 4 moles of electron. 4 moles of electron. ये पहले याद रखो for exam point of view. So in dry cell, anode is zinc container, cathode is graphite rod, and we are talking about dry cell. So electrolyte is paste of ammonium chloride and ZnCl2 and MnO2 and carbon. Means what? Carbon powder. What is the reaction? आपको मालूम है lone, left hand side oxidation, anode and negative charge. And one more thing I told you, it is immaterial whether the cell is electrolytic or electrogenic, हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा. तो Zn gives Zn plus 2, NH4 plus gives ammonia plus hydrogen H2. This H2 is going to combine with MnO2 and we are going to get Mn2O3. What is the cell EMF? 1.5 volt. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ये इतना ही आपको सिर्फ रीड करना है, बाय हार्ट नहीं करने का. What is cell reaction of dry cell? Simple. Zn gives Zn plus 2, NH4 plus gives ammonia plus H2. That H2 combines with MnO2 and form Mn2O3 and water. What is next one? Nickel cadmium battery. Listen here. Cadmium CAD है ना. तो एनोड क्या है? कैडमियम मेटल. तो कैथोड क्या है? निकल, बट निकल प्लेट या निकल मेटल वी कैन से, या निकल रॉड वी कैन से. ओके, but it is coated with NiO2. It is coated with NiO2. Okay, so cadmium is anode and nickel coated with NiO2 is cathode. What is electrolyte? ये पैटर्न सेम रहेगा, ये पैटर्न सेम रहेगा. What is electrolyte? Alkaline solution. अभी एनोड के ऊपर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन. And we are using basic solution. इतना आपको मालूम है. Basic solution means what? OH minus. So simple. CD will give CdOH twice and NiO2 will give you NiOH twice. इतना ही याद रखिए. What is next thing? Mercury cell. What is anode? Zinc. What is cathode? Paste of mercury and carbon on any inert electron. Okay. What is electrolyte? Paste of KOH along with zinc oxide in alkaline solution. Again, what is electrolyte? Alkaline solution. Paste of alkaline solution containing KOH plus ZNO. इतना याद रखो. सेंटेंस मत बनाओ. Paste of KOH plus ZNO, zinc oxide in alkaline solution. अभी वापस क्या होगा? ये जो Zn है, जिंक अमालगम है ना, मालूम है ना, कंपाउंड विद मर्क्यूरी इक्वल जिंक अमालगम. तो Zn क्या देगा? जिंक ऑक्साइड. देखो ना, 0 से क्या बन गया? +2. और ये HgO जो है, दिस HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड +2 से क्या देगा? मर्क्यूरी देगा. क्या देगा? मर्क्यूरी. ओके, ये थोड़ा सा अच्छे से करके रहना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं. सो इन मर्क्यूरी सेल, देखो मर्क्यूरी सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरी सेल है तो at cathode I am going to get mercury. From what? Mercuric oxide. And at anode Zn will give you zinc oxide. Tell me how to remember. अरे हाँ सर, at anode zinc amalgam will give you zinc oxide and at cathode mercury oxide will give you mercury. What is next thing? Lead accumulator. Here there are two fundas. One is discharging and one is charging, है ना. So what is anode? Lead plates. What is cathode? Lead plates coated with PbO2. अभी बच्चों ध्यान दो, PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है. Why? Because ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. -2 2 is -4, so Pb should be +4. ये पहले याद रखें. What is electrolyte? 38% H2SO4. What is overall reaction at anode? Pb forms PbSO4. देखो ना, 0 से +2 हो गया.
एंड PbO2 फॉर्म्स PbSO4। अभी मैंने बताया ना +4 से वापस क्या बन गया +2। तो ये दो रिएक्शन याद रखना, ऐड करोगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा, वो ऐड करने का जरूरत नहीं। व्हाट इज नेक्स्ट वन? फ्यूल सेल। एनोड porous graphite rod, cathode porous graphite rod, H2 is bubbled, O2 is bubbled. What is solution? Electrolyte hot aqueous solution। बेटा अभी ध्यान दो ना, फ्यूल सेल में क्या है अल्कलाइन सॉल्यूशन, मर्क्यूरी में क्या है अल्कलाइन सॉल्यूशन, निकल कैडमियम क्या है अल्कलाइन सॉल्यूशन, लेड एक्यूमुलेटर में क्या है H2SO4 है ना, एसिडिक है। और ड्राई सेल में भी क्या है बोलो बेटा स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन है। एंड बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड सेल गेट्स करोड एंड इट स्टार्ट गेटिंग होल्स, एंड दैट्स व्हाई आजकल इसके बदले में अल्कलाइन बैटरी यूज करते हैं। अभी ये हो गया। तो ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो हाइड्रोजन का रोल क्या है फ्यूल है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2 will give you H2, इतना ही याद रखना आपको, H2 will give you H2O and O2 will give you OH minus 1.23 EM। हाँ अभी थोड़ा ध्यान देना। So here first thing, these are what formulae। आपको मैंने सॉल्यूशन जब भी करवाया था तभी भी आपको याद रहेगा, देखो हम लोग पहले सब फॉर्मूलेस करते हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो दिस इज व्हाट W। व्हाट इज दिस W? This W is nothing but weight of the substance which is deposited on the respective electrode during electrolysis। वापस डायलॉग बोलता हूँ, W is the weight of the substance which get deposited on respective electrodes during electrolysis। Q upon 96,500। I think मेरे को याद है कोई बच्चे ने इसका आंसर दिया था, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास। बट व्हाट इज Q? I into T upon 96,500 coulomb। How to find out? How to find out the mole ratio? ये मैंने सिखाया था, वापस देखो ये लिखा है, mole ratio is what ratio of what moles of product upon electron, moles of product to the moles of electron in half reaction। एनोड में तो क्या करें, suppose we are having CuSO4, तो एक लिसन ये, हाँ मुझे तो मैं उसमें नोट कर दूंगा। सल्फेट रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर और वी कैन से वैलेंसी है -2, कार्बोनेट -2, ऑल हलाइड्स -1, नाइट्रेट -1 एंड फॉस्फेट -3। मैं वापस बताता हूँ, हलाइड्स क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये सब -1, नाइट्रेट NO3 -1, अभी मैं -2 बताता हूँ, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फेट SO4 -2 -3 बताता हूँ, फॉस्फेट PO4 -3। दैट मीन्स यहाँ पे why I am doing electrolysis? To get copper। To get copper means what? Copper atom। But I told you what is electrolysis, आपको मैंने बताया था discharge of ion। जो बच्चा याद रखेगा ना उसको ये रिएक्शन बहुत इजी जाएगा। अरे हाँ सर यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, सो इट इज नथिंग बट डिस्चार्ज ऑफ आयन। तो देखो, तो अगर SO4 -2 है तो बट ऑब्वियस कॉपर +2 हो गया, तो +2 से आपको बोझ हटाना है तो इसको निकाल दो, तो +2 से देखो क्या बन गया Cu0। सो आप बोलोगे अरे हाँ सर ये तो +2 से 0 हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस, सो प्रोसेस इज रिडक्शन। रिडक्शन देखो ना खुद बोलता है REDU, रिडक्शन मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन यूज करो, तो देखो इलेक्ट्रॉन यूज किया। AlCl3, अभी मोल रेशियो निकालना है,
how many moles are there? 1. And how many moles of electron? 2. So what is the ratio? 1/2. AlCl3, हैलोजन का वैलेंसी -1, तो ये जो 3 है ये किसका वैलेंसी है? एल्यूमिनियम का, है कि नहीं? Now, so what we'll write down? Al plus 3, तो ये बोझ हटा दिया तो Al 0 बन गया. So ये कन्वर्जन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे? 3 moles of electron. So प्रोडक्ट 1 मोल 3, so 1/3. इन शॉर्ट इसका वैलेंस रहता है. बट आप लोग ये फॉर्म, आपको ये इक्वेशन एग्जाम में बताना है बेटा. NaCl, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन Na प्लस, तो Na प्लस से Na 0 होगा तो +1 से 0 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मोल 1 है और ये 1/1. सेम NaCl मैंने लिया देखो यहाँ पे, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन क्लोरीन. बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये Cl क्या है? माइनस है. Cl माइनस है तो इसका बोझ हटा दिया मैंने. अरे हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस तो करना है. तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस में ये याद रखोगे ना कि अरे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मीन्स वो डिस्चार्ज ऑफ आयन है, तो आपको ये ना किसी को हेल्प लेने का जरूरत नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. देखो ना, अरे हाँ सर, एज यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस तो इसका बोझ हटा दो, तो ये Cl माइनस को Cl लिखो. मैंने 2 भी नहीं लिखा, चलो Cl लिखो, Cl 0. बट आपको मालूम है क्लोरीन एटमॉस्फेयर में अकेला थोड़ी घूमेगा, डायटोमिक है तो Cl2 बनाएगा. तो इसको मैंने 2Cl माइनस किया. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस 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 से 0 हो रहा था तो रिडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे सर माइनस से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड. मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा, समझा ना बेटा? ये किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है. एंड दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बच्चे क्या करते हैं, 10 टाइम ये लिखते हैं. ओके, नाउ सो दिस वे वी कैन गेट मोल रेशियो. व्हाट इज नेक्स्ट वन? लिसन, दिस इज फैराडेज सेकेंड लॉ. ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, ये फैराडेज सेकेंड लॉ. अभी आपका बुक में मेंशन नहीं किया है. W1 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 1 into 1 मीन्स व्हाट? ये वन सॉल्यूशन नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है. सो W अपॉन MRM. व्हाट इज MRM? मोल रेशियो इनटू मोलर मास इनटू W2 अपॉन MRM ऑफ 2. नाउ बेटा ध्यान दो, हियर ऑल्सो we are going to find out W. Here also we are going to find out W. एक मिनट. Here also I am going to find out W. तो आप तो छोटे हो, या मैं गलती कर दूं तो मैं सॉरी बोल के निकल जाऊंगा, अरे सॉरी बच्चों. बट आपके लिए सॉरी इज व्हाट? क्राइम. नाउ लिसन, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो ब्रैकेट में, इफ टाइम रिलेटेड सम यूज फर्स्ट फॉर्मूला. ये वाला पहला वाला फॉर्मूला. नाउ केमिस्ट्री इज व्हाट माय ब्रेड एंड बटर ना, तो मेरे को ये तो मालूम ही मांगता है. आप बोलोगे सर हम लोग का एक सम रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया, ऐसे बच्चे रहते हैं. लिसन हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ये मालूम मांगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सर इसमें भी W है, इसमें भी W है, तो याद रखो. देखो ना यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT लिखा है मैंने, तो टाइम रिलेटेड जब भी सम रहेगा ना तो हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है. आर यू गेटिंग एनी टाइम रिलेटेड टर्म हियर? नो, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द लेक्चर. ये फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला दिया हम लोग 10 टाइम लिख लेंगे, चलो हो गया था. इट इज नॉट लाइक दिस. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला में फर्स्ट दो सम जो मीन्स व्हाट, दो सम आएंगे वो वेट W के बेस पे रहेंगे. मीन्स व्हाट, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट वेट. व्हाट इज नेक्स्ट वन? EMF ऑफ द सेल. यू नो द फॉर्मूला. देखो मालूम है ना, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज नथिंग बट स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड, कैथोड माइनस एनोड, नथिंग बट RHS माइनस LHS. ओके, नाउ what is Nernst equation? E, देखो सी द डिफरेंस, E नॉट है बट ये E है.
कभी यूज करने का नन्स इक्वेशन, व्हेन condition of the cell is not mentioned at standard condition. That means cell is not mentioned at standard condition. Now question arises, what are standard condition? आपको मालूम है टेम्परेचर 25 डिग्री 298 केल्विन, प्रेशर 1 atmosphere and concentration 1 molar. So if cell is not mentioned at standard condition, use Nernst equation. E of the EMF of the cell is standard EMF of the cell minus 0.0 minus 0.0592 upon N log of product upon reactant. What is this N? Number of moles of electron involved in the reaction. Now, concentration of solid. अभी आप लोग की सॉलिड की तरह ये जो Cu0 है ना, this solid and gas is always one. Now देखो यहाँ पे ये while solving Nernst equation numerical, देखो मैंने एकदम स्पेसिफिक लिख के दिया बेटा, while solving Nernst equation numericals write cell reaction first. Why? मैंने बोला करके नहीं, because formula says, formula demand कर रहा है n, formula demand कर रहा है प्रोडक्ट, what is this term? Concentration, and formula demand कर रहा है reactant. That means without writing cell reaction, how will come to know which one is product and which one is reactant? तो that's why जब भी आपको समझेगा कि सम नल्स इक्वेशन के डिपेंड है, तो आपको पहले सेल रिएक्शन लिखना है. उससे आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा. What is next one? Cell potential at equilibrium. इक्विलिब्रियम में तो लेवल 0 है, लेवल इक्वल है, मींस फ्लो होगा ही नहीं, सो ई 0. अभी बच्चा वापस ये इक्वेशन बाय हार्ट कर, जरूरत नहीं है. देखो एक मिनट में वापस पीछे लेके जाता. सो अगर आपको नर्स इक्वेशन याद हो गया, EMF ऑफ द सेल इज व्हाट? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. नाउ एट इक्विलिब्रियम ये 0 हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम मींस आपको मालूम है ना, कॉन्सेंट्रेशन, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट इज व्हाट? K. सो ये जो है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसकी जगह पे मैं K लिखूंगा. तो और ये तो 0 हो गया, तो ये जो पूरा टर्म जो है वो माइनस जो है वो पूरा का पूरा टर्म इधर प्लस हो जाएगा. वही तो मैंने लिखा है. तो काय को दो टाइम दिमाग यूज करने का. लिसन, तो देखो ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये जो पूरा टर्म आपको वहां पे माइनस दिख रहा था वो प्लस हो गया, और जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था वो के हो गया. व्हाट इज नेक्स्ट वन? डेल्टा जी गिव्स एनर्जी. व्हाट द फॉर्मूला? माइनस एनएफई. स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ. अभी हम लोग किया था मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, नथिंग बट व्हाट इज 1 अपॉन सी? वी. लैम्डा इज इक्वल टू केवी. What is formula for cell constant? L upon A, or we can say RK. है कि ना? सेल कांस्टेंट का दो फॉर्मूला है, L upon A और RK. What is next one? Alpha, degree of dissociation, molar conductivity at given concentration upon at 0 concentration. So with the help of that we can find a dissociation constant also. ये फॉर्मूला है. What is next one? Kohlrausch law. What is Kohlrausch law? What he said, we cannot find out lambda 0 value, we cannot find out lambda 0 value of weak electrolyte. तो उसने बोला मेरा इक्वेशन यूज करो. सो lambda 0 value of this one weak electrolyte is what? cation का lambda plus anion का lambda. Okay, this way. Okay. So what we'll do, here I'll stop, and in next lecture, okay, we'll solve numericals.
The thing is what, please do one thing, ये जो formulas है बेटा, ये जो formulas है वो प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड देन आई विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स. हाँ, तो वाई एम स्टॉपिंग, वो थोड़ा फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लेना, नहीं तो ये सब मैकेनिकल हो जाएगा कि सर बकबक कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं. तो डोंट डू दैट. ओके, तो इतना प्लीज कर लेना. सो हियर आई एम मींस टेक रेस्ट. ओके, and we'll meet next time. Okay, bye bye and good Sir, night. thank you, sir. Okay. Siddhi, you can end the meeting. Siddhi, are you there?